I'd like to welcome Dr. Neha Patel. Dr. Neha Patel has completed her BJMC and MD from GCRI. She has 8 years of experience in radiotherapy and 3 years of experience in tomotherapy and have received her training for tomotherapy from Medicine USA. She is the state committee member of National Conference, scientific committee member of South Gujarat Oncology Association. She is also the EC member of WDW IMA Surat. She has been trained in CyberKnife in Medanta, Delhi, motion management in Max Hospital, Delhi, and has been a renowned speaker in various national and international conferences. First of all, I would like to congratulate the whole Sanjeevani family, Ruby ma'am, for organizing such a delightful webinar for World Cancer Day. Yesterday was celebrated as World Cancer Day, and as already spoken by Sumki, that there is a lot of unawareness about cancer and people don't know what cancer is and how it is spreading in our body. So basically people think that there is some organism or some infection inside your body which need to be eradicated by the treatment, but actually it is only your own cells which are growing uncontrollably. So may I now request to share my PPT? So ma'am, shall I share the PPT for you? Yeah. So today we'll be discussing very basic of the cancer, what is cancer and how it spreads in your body. So cancer is an uncontrolled growth of abnormal cells anywhere in the body. So our body is made up of multiple cells, and any uncontrollable growth occurring in these cells is called a cancer. So what are the causes? These are broadly broad causes of the cancer, like chemicals, toxic compound exposure, radiation exposure, some viral exposure like HPV, hepatitis virus infection. These may be the causative agent for the cancer. So please change the slide. Yeah, so as we can see in this PPT, that a normal cell division, like if you, can you go back? Can you go back to the previous slide? Yeah. Ma'am, the introduction slide or what is cancer? No, the second one. Yeah, this one. The second one. Yeah. So here we can see the second slide. Yeah, so in this slide, we can see a normal cell division. Like for an example, if we take any kind of cell, we know that there is a renewal of cell in our body. Like for example, if we take a skin cell, it is growing continuously. If any other language is suitable, I can talk in Hindi or other languages also, which is comfortable to all of you. Yes, so ma'am. Hindi, English, both you can use. या तो जैसे स्किन का रिन्यूअल हमें पता है कि एवरी 7 डेज हमारा स्किन का सेल्स रिन्यू होता है, तो एक नया हमेशा सेल्स डिवाइड होते रहते हैं और वो थोड़े टाइम के बाद ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में सेल का डैमेज होता है, सेल डेथ होता है और वो आगे ग्रो नहीं करता। जबकि कैंसर सेल में ऐसा होता है कि कैंसर सेल्स में मल्टीपल, हमारे जो नॉर्मल सेल्स का एक प्रोसेस होता है कि ग्रो करने के बाद उसको मरना है। जैसे हमारा जीवन में ऐसा होता है कि हम आए हैं तो हम एक दिन तो मरेंगे, वैसे सेल्स का भी ऐसा होता है कि आते हैं, अपना काम करते हैं और फिर उनकी भी डेथ होनी चाहिए।
जब उन कैंसर सेल्स का डेथ नहीं होता कुछ किसी कारण से, जैसे उनमें मल्टीपल म्यूटेशंस होते हैं, वो जो म्यूटेशन किसी भी वायरस से हो सकते हैं या रेडिएशन से हो सकता है, कोई केमिकल से हो सकता है, जो एबनॉर्मल चीज है उससे उसमें मल्टीपल म्यूटेशंस होते रहते हैं, जिसकी वजह से वो सेल्स नॉर्मली बिहेव नहीं करता है और वो मरता नहीं है, और उसका जो कंट्रोल होता है बॉडी में ग्रोथ स्टॉप करने का कि या मर जाने का, वो चला जाता है और वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ में मल्टीपल टाइम्स में वो बढ़ता रहता है उसी जगह पे। अभी वो जिस जगह पे बढ़ रहा है, सपोज सेल स्किन का है जो अनकंट्रोलेबली बढ़ रहा है, तो वो स्किन कैंसर करता है। वैसे ही किसी और बॉडी पार्ट का होता है, जैसे हेड एंड नेक, मुंह का कैंसर होगा तो वो मुंह का कैंसर बनाएगा, वहां के सेल्स में अगर अनकंट्रोलेबल ग्रोथ है तो वो वहां का कैंसर बनाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। सो अभी हम देखेंगे कि इन दोनों जो सेल्स है इसमें डिफरेंस क्या है। तो नॉर्मल सेल्स आप देख सकते हैं एकदम ही ऐसे राउंड रहते हैं, न्यूक्लियस भी राउंड है, उनके में एक फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेल्स है और वो एक फिक्स ग्रोथ पैटर्न में ग्रो करते हैं। जबकि आप नीचे देखेंगे तो कैंसर सेल्स एकदम ही गंदे, जैसा आप कैंसर देखते हैं, जैसे देख के ही आपको पता चलता है इट इज वेरी लाइक बहुत ही गंदा सा दिखता है कैंसर, तो वैसे उसका जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी रहता है कि वो एकदम ही सेल्स डिसऑर्गेनाइज्ड वे में रहते हैं, उनका शेप मेंटेन नहीं होता, न्यूक्लियस भी एबनॉर्मली उसमें वाइडेंड होता है, उसके साइज एंड शेप चेंजेस होते रहते हैं, और उसमें अंदर क्रोमोसोम्स जो रहते हैं वो भी एबनॉर्मल रहते हैं, और इसके जो है एक वेल ऑर्गेनाइज पैटर्न में वो नहीं रहते हैं, डिसऑर्गेनाइज पैटर्न में वो ग्रोथ करते हैं, मतलब एक शेप नहीं होता उनका, अनकंट्रोल्ड वे में वो ग्रोथ करते हैं। तो जैसे हम देख सकते हैं कि देयर इज एन अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, उनका रिपेयर या डेथ नहीं होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी सेल्स जैसे स्किन का सेल है या इंटेस्टाइन का सेल है या ब्रेस्ट में जो सेल है, जो नॉर्मल सेल है वो बॉडी में दूसरी जगह पे ट्रैवल नहीं कर सकता है, जबकि जो ये कैंसर का सेल है वो एक जगह से दूसरी जगह बॉडी में ट्रैवल कर सकता है थ्रू अ मीडियम, जो ब्लड वेसल्स हो सकता है या फिर लिम्फेटिक सिस्टम हो सकता है। दूसरा के जैसे मैंने बताया कि हर एक सेल अपना काम करके उसकी डेथ होनी जरूरी है, तो ये डेथ कौन करता है? हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ऐसे सेल्स को रिकॉग्नाइज करता है जो बहुत ही ज्यादा ओल्ड हो गए हैं, जो अपना नॉर्मल फंक्शन है वो नहीं कर पा रहे हैं, और इसलिए वो इम्यून सिस्टम हमारा उसको रिकॉग्नाइज करके उसको मारते हैं। जबकि कैंसर सेल्स में ये इम्यून सिस्टम इफेक्टिव नहीं रहते हैं और वो इस एबनॉर्मल सेल्स को मार नहीं पाते हैं। दूसरा, ये कैंसर सेल्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि उनको खाना बहुत ज्यादा चाहिए होता है, तो वो उसके लिए उनका फूड जो रहता है मेनली ब्लड वेसल्स होता है, ब्लड सप्लाई उनको चाहिए, तो वो ब्लड सप्लाई अपने आप ही उनकी ग्रोथ फैक्टर्स उसमें ऐसे होते हैं कि वो खुद की ही ब्लड सप्लाई क्रिएट करते हैं, और वो भी बहुत फास्ट एज कंपेयर टू नॉर्मल सेल्स। इनकी खुद की ब्लड सप्लाई वो खुद ही उनके ग्रोथ फैक्टर्स उसमें से ऐसे रिलीज होते हैं कि अपनी खुद की ब्लड वेसल्स बन जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जैसे ब्रेस्ट कैंसर का फॉर एग्जांपल हम ले लें कि ब्रेस्ट कैंसर में जब कैंसर एबनॉर्मली ग्रोथ कर रहे हैं तो वो ब्रेस्ट में ग्रो कर रहे हैं, तो ब्रेस्ट का क्या काम होता है नॉर्मली के फीड करना, मिल्क बनाना, तो कैंसर सेल्स जो ये फंक्शन है वो नहीं करते हैं, वो साइड पे रह जाता है, और वो एबनॉर्मली ग्रो करके जो उसका नॉर्मल फंक्शन है वो तो नहीं होता है, उल्टा नॉर्मली वो ग्रोथ करके आपकी बॉडी में दूसरी जगह फैल के और आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, मतलब दे डोंट डू देयर असाइंड टास्क। जहां पे भी ये कैंसर बन रहा है वो उसका फंक्शन नहीं मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सो ये कुछ हॉलमार्क्स ऑफ कैंसर है कि कैंसर सेल क्या क्या, मतलब हाउ यू कैन से दैट दिस सेल इज अ कैंसर सेल। एक तो जो ग्रोथ सप्रेसर
रहते हैं, जैसे मैंने बोला इम्यून सिस्टम में ऐसे सेल्स होते हैं जो गंदे सेल्स को मारते हैं, तो ये सेल्स ग्रोथ सप्रेसर्स जो उसके सिग्नल्स होते हैं उसको सप्रेस कर देते हैं, मतलब ये मारने वाले सिग्नल्स उन तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। दूसरा के प्रोलिफरेटिव सिग्नल्स जो ग्रो करने के लिए सेल्स के लिए सिग्नल होते हैं बॉडी में, वो इसमें ज्यादा काम करते हैं, वो ज्यादा एक्टिवेटेड नहीं हो पाती है। नॉर्मली जो बॉडी में पैटर्न होता है डेथ करने का वो नहीं रहता है। जैसे मैंने बोला इनको खाना बहुत चाहिए, तो इंड्यूसिंग एंजियोजेनेसिस, एंजियोजेनेसिस मींस खुद का ब्लड सप्लाई है, खुद का खाना खुद ही क्रिएट करने में ये माहिर होते हैं, इसलिए आजू बाजू की ब्लड वेसल्स अपने तरफ डाइवर्ट करके अपनी खुद की नई नई ब्लड वेसल्स क्रिएट करते हैं और अपना खुद फूड क्रिएट करते हैं। और ये मल्टीपल टाइम्स बढ़ते ही रहते हैं, और अपने उनकी जो, जैसे मैंने बताया कि नॉर्मली कोई भी सेल्स जिस ऑर्गन में है वो उसी ऑर्गन में रहेगा या वहीं पे मर जाएगा, लेकिन ये वहां पे ज्यादा बढ़ बढ़ के बॉडी के दूसरी जगह पे जाता है, जिसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Ma'am, the properties of cancer cells. Yeah, next slide. I have already discussed it. अभी इतना एडवांस ट्रीटमेंट आ गया है कि हम ईच एंड एवरी पाथवे पर भी फोकस करके उसको एड्रेस करते हैं, जो मेनली कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी है। इम्यूनोथेरेपी इस टाइप की थेरेपी है जो आपके इम्यून सिस्टम को, जैसे मैंने बोला कि इम्यून सिस्टम हमारा वीक हो जाता है और इन कैंसर सेल्स को मार नहीं सकता है, तो इनके केस में इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए अभी नया ट्रीटमेंट आ जाता है, उसको बोलते हैं इम्यूनोथेरेपी, जो इन इम्यून सेल्स की एक्टिविटी को बढ़ाता है। फिर ऐसे ही जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज बोली, उस प्रॉपर्टीज में हर एक लेवल पे टैकल करने के लिए हमारे पास अलग अलग ट्रीटमेंट रहती है, जिसमें हम या तो उनका जो ब्लड सप्लाई करने का है, जैसे ये पार्प इनहिबिटर्स हैं, ये उनके म्यूटेशन को रोकेगा। ऐसे ही ये EGFR इनहिबिटर्स है, ये जो ग्रोथ के लिए उनके जो हार्मोन्स चाहिए उसको ये रोकेगा। नेक्स्ट स्लाइड्स। अब बात करते हैं कॉमन सिम्टम्स क्या हो सकता है पेशेंट को अगर कैंसर है। तो जनरलाइज जो सिम्टम्स है ये उसका है, ऑर्गन वाइज सबका सिम्टम अलग अलग रहता है। तो जनरल सिम्टम्स है फटीग यानी थकावट, वेट लॉस, फिर पेन, स्किन में चेंजेस, अनयूजुअल ब्लीडिंग, परसिस्टेंट कफ और फीवर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अभी ट्यूमर होता है, जब एबनॉर्मली ग्रोथ होता है, तो एक तो होता है नॉर्मल ग्रोथ और एक होता है ट्यूमरस ग्रोथ, सॉरी मैलिग्नेंट ग्रोथ। तो दो टाइप की ग्रोथ होती है, एक होता है बिनाइन ट्यूमर, एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो अपनी ही जगह पे बढ़ते रहते हैं, लेकिन आजू बाजू कहीं पे फैल के नहीं जाते और ये वेल डिफाइंड रहते हैं, तो इसको कैंसर नहीं बोलेंगे, ये नॉर्मल गठन होती है। इसका एग्जाम्पल जैसे कान के नीचे होता है एक श्वानोमा करके कैंसर होता है, एक पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है जिसको पिट्यूटरी एडिनोमा बोलते हैं, ब्रेस्ट में भी कुछ ऐसी गठान होती है एडिनोमास करके, वो भी नॉर्मल रहती है। तो कभी कभी गठान होती है आपको किसी जगह पर, वो जरूरी नहीं है कि वो कैंसर वाली ही हो, तो वो बिनाइन भी हो सकती है। बिनाइन यानी वो वेल डिफाइंड है, वो उसी जगह पे बढ़ती रहेगी लेकिन बॉडी में दूसरी जगह स्प्रेड नहीं होगी, और वो इतनी डेंजरस नहीं है मैलिग्नेंट की तरह, लेकिन वो उसको भी एड्रेस करना पड़ता है हमें ट्रीटमेंट से। मैं एक रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, एज अ रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट आई कैन से कि अगर ये बिनाइन ट्यूमर भी अपनी जगह पे बढ़ के जो नॉर्मल चीजें हैं उसको दबाते हैं, तो उससे आपका, जैसे एग्जांपल ले ले पिट्यूटरी एडिनोमा का, वो बढ़ के आगे आपकी आंखों की नसों में और इसमें कंप्रेशन करके आपका
विजन लॉस कर सकते हैं, तो उसको भी ट्रीटमेंट तो देना पड़ता है, लेकिन वो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की तरह इतना डेंजरस नहीं होता है। वो हमें ट्रीटमेंट उसमें या तो सर्जरी या रेडिएशन से उसको टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि मैलिग्नेंट ट्यूमर तो आप जैसे जानते ही हैं कि उसका एबनॉर्मल ग्रोथ तो होता ही है, साथ में वो आजू बाजू चीजों को कंप्रेस करता ही है, उसमें घुस भी जाता है, कंप्रेस करने के साथ साथ उसके साथ अंदर घुस भी जाता है, और उसके साथ वो वेसल्स या लिम्फेटिक्स के थ्रू आपकी बॉडी में स्प्रेड भी होता है। नेक्स्ट स्लाइड। सो मेरी ब्रॉड ट्रीटमेंट्स क्या रहती है कि कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और कैंसर पेशेंट में दिया जाता है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। तो अब बात करते हैं कि मोस्ट कॉमन कैंसर्स कौन से हैं। कैंसर हेड टू टो हर एक जगह पे कैंसर हो सकता है। ब्रेन ले लो, मुंह ले लो, गला ले लो, ब्रेस्ट ले लो, लंग्स ले लो, लिवर, पेनक्रियास, इंटेस्टीन्स, स्मॉल इंटेस्टीन्स, लार्ज इंटेस्टीन्स, उसके अलावा स्किन में, ब्लैडर में, प्रोस्टेट में, फीमेल्स में यूट्रस, सर्विक्स, फिर आपके जो मसल्स रहते हैं उसमें, और मतलब बोन्स में, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी कैन हैव अ कैंसर। अब बात करते हैं कि मेन में कौन सा मोस्ट कॉमन कैंसर होता है, तो सबसे ज्यादा कॉमन जो इंडिया में है वो है हेड एंड नेक कैंसर, उसके बाद लंग कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर। अभी फीमेल्स की बात करें तो मोस्ट कॉमन कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर, उसके बाद सर्वाइकल कैंसर और लंग का कैंसर। चिल्ड्रन में जनरली ब्लड ल्यूकीमिया रिलेटेड कैंसर ज्यादा देखे जाते हैं, जैसे ब्लड ब्लड कैंसर जो बोले जाते हैं, ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, ब्रेन ट्यूमर्स और बोन्स के ट्यूमर्स भी, इविंग सार्कोमा वगैरह फीमेल बच्चों में ज्यादा देखे जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैंसर की, कि कैंसर के क्या टाइप्स है। तो हर एक टाइप जिस ऑर्गन में होता है उसका नाम से उसका कार्सिनोमा बन जाता है। अब बात करते हैं कार्सिनोमा। कार्सिनोमा मतलब विच बिगिंस इन अ स्किन और इन द टिश्यू। अपना बॉडी में पूरा ऊपर से नीचे एक लेयर रहता है, जैसे अपना बॉडी के आउटर लेयर है स्किन, वैसे अंदर जो भी ऑर्गन्स रहते हैं उसका भी एक लेयर रहता है, आउटर लेयर। उस लेयर में जब कैंसर बनता है तो उसको बोलते हैं कार्सिनोमा। तो जैसे ये सारे टाइप्स बताए हैं, एडिनोकार्सिनोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा और ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा। अब ये ब्रॉड नेम्स है, ये हर जगह हो सकते हैं, मतलब आपके स्किन में, फिर ये यहाँ की स्किन, अगर मुंह की स्किन में हो रहा है तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ हेड एंड नेक रीजन, फिर अगर ब्रेस्ट में हो रहा है तो इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट। तो ये थोड़ा जैसे नाम तो वैसे ही होता है, हेड एंड नेक, ब्रेस्ट कैंसर, फिर बोन का कैंसर और ऐसा, पर ये थोड़ा और डॉक्टर लेवल की लैंग्वेज में आ जाएगा कि उसकी जो लेयर है उसके हिसाब से, जैसे अन्न नली का अगर कैंसर है तो वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ ईसोफेगस हो जाएगा, या फिर एडिनोकार्सिनोमा ऑफ ईसोफेगस। नेक्स्ट स्लाइड। स्लाइड ही चेंज नहीं करता। अभी जो बोन्स और कार्टिलेज में कैंसर होता है उसको बोलते हैं सार्कोमास, और उसके आजू बाजू के मसल्स में अगर कैंसर हो रहा है तो उसको बोलते हैं सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा। कार्टिलेज में होता है तो कार्सिनोसार्कोमा बोलते हैं। ऑस्टियोसार्कोमा बोन्स के कुछ टाइप्स हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर ब्लड में कैंसर हो रहा है तो उसको बोलते हैं ल्यूकीमिया। अगर एबनॉर्मली आपके डब्ल्यूबीसी सेल्स या सेल्स में चेंजेस आ रहे हैं तो उसको ल्यूकीमिया बोला जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर लिम्फ नोड्स में कैंसर हो रहा है तो उसको बोलते हैं लिम्फोमा या फिर माइलोमा। जो एक टाइप का व्हाइट ब्लड सेल्स प्लाज्मा सेल्स में होता है उसको बोलते हैं माइलोमा। नेक्स्ट स्लाइड।
अब इस ब्रेन में अगर ट्यूमर हो रहा है तो उसको ब्रेन ट्यूमर या फिर उसका पर्टिकुलर जो साइट है उसके हिसाब से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का ट्यूमर सीएनएस सिस्टम में हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। अब स्प्रेड ऑफ द कैंसर जो इसका प्रॉपर्टी होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी कैंसर में क्या डिफरेंस है। प्राइमरी मतलब जहां से ओरिजिन हो रहा है उसको प्राइमरी साइट बोलेंगे। मतलब अगर ब्रेस्ट में कैंसर हो रहा है तो उसको ब्रेस्ट कैंसर का प्राइमरी साइट बोलेंगे। फिर अगर ब्रेस्ट कैंसर स्प्रेड होके आपका लिवर में या बोन में कहीं पे जा रहा है तो वो स्प्रेड होके वहां पे गया है, इसलिए उसको सेकेंडरी कैंसर बोलेंगे, जो ब्रेस्ट कैंसर का मेटास्टेसिस है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो ये एग्जाम्पल है, ये है प्राइमरी जो ट्यूमर है, ये रेक्टम मतलब कोलोन का है जो स्प्रेड होकर लिवर में गया है ब्लड वेसल्स के थ्रू। तो ये दूसरा स्पॉट जो है वो सेकेंडरी कार्सिनोमा कहलाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। ये वीडियो है, प्ले कीजिए प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। तो एज आई सेड कि ये स्प्रेड कैसे होता है, या तो ब्लड वेसल्स या लिम्फ वेसल्स से इस तरीके से ट्यूमर सेल्स ऐसा ट्रैवल करके आगे बढ़ते हैं दूसरी जगह की तरफ। जब ब्लड वेसल्स जो ट्यूमर की रहती है वो बहुत ही पतली होती है, जब उसमें वो अटक जाता है सेल्स तो ये वहीं पे ग्रो करने लगता है। मान लो ये ब्लड वेसल लिवर के पास जाके अटका ये ट्यूमर सेल्स, तो वो लिवर में जाके नया ट्यूमर अपना ग्रोथ कर लेता है, तो इसको मेटास्टेटिक साइट बोलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। लिम्फेटिक सिस्टम से भी स्प्रेड हो सकता है, जो लिम्फ नोड्स में स्प्रेड होता है। नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू सो Thank you. मच।